Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution. Let's work your preschool online classes, kids. Today's date is 12 September 2020 and day is Saturday. Hey kids, welcome to your class. And as you all know that we start our day and our class with recitation. So kids, today we will recite an English rhyme. For that, you have to open rhyme book and open the page number 6. Early to bed. So kids, stand up in your place wherever you are. Now I am going to recite this rhyme and you have to repeat after me with action. So let's start, kids. Early to bed. Repeat after me. Early to bed. Early to rise. Early to bed. Early to rise. Makes a man healthy, wealthy and wise. Makes a man healthy, wealthy and wise. Kids, let's repeat one more time. Early to bed. Early to rise. Makes a man healthy, wealthy and wise. Kids, I hope you all have enjoyed this rhyme. So kids, just repeat it many times so that you can learn it well. Thank you. Hey kids, let's start our English oral class. Today we will learn phonetic A to J. A to J. Let's start, kids. Mr. A says. Mr. A says apple. Means Mr. A कैसा साउंड करते हैं? A. Mr. A says apple. Repeat after me, kids. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. B says ball. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says. Mr. C says cap. Mr. C says cap. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says cap. Now Mr. D says. Mr. D says dog. Mr. D says dog. Mr. E says. Mr. E says egg. Mr. E says egg. Let's revise, kids. Mr. A says apple. Mr. B says ball. Mr. C says cap. Mr. D says dog. Mr. E says egg. Now Mr. F says. Mr. F says fish. Mr. F says fish. Mr. G says. Mr. G says grapes. Mr. G says grapes. Mr. H says hat. Mr. H says hat. Mr. I says import. Mr. I says import. And Mr. J says joker. Mr. J says joker. Let's revise, kids. Mr. F says fish. Mr. G says grapes. Mr. H says hat. Mr. I says import. Mr. J says jug. Kids, this is your homework. You have to learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is English written. Kids, take out English notebook and open the page where I have done the setting of 12 September 2020 and day is Saturday. Kids, yesterday we have revised the formation of I. Today we are going to learn to draw the formation of J. आज हम क्या करेंगे? J का फॉर्मेशन करेंगे. क्योंकि हमने H कर लिया, I कर लिया, अब I के बाद क्या आएगा बच्चों? J. तो हम आज क्या करने जा रहे हैं? J का फॉर्मेशन करेंगे. With this object.
What is this, kids? This is J says joker. J says joker. ये क्या है बच्चों? J says joker. As you all know that you have to color this object. J says joker and then you have to write J. Kids, J says जग का फॉर्मेशन के लिए स्टेटमेंट क्या होगा? One had, one man, and turn. One had, one man, and turn. So kids, now we are going to draw the formation of J. One had, one man, turn. इसको क्या किया बच्चों? अप साइड थोड़ा सा टर्न करा दिया ना. चलिए बच्चों अब फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एंड किड्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव टू टच द अपर एंड बॉटम लाइन बोथ केयरफुली. आपको बच्चों बॉटम लाइन अपर लाइन टच करके लिखना ही है जब तक हम ये जेड का फॉर्मेशन नहीं कर लेते पूरा. मीन्स जब तक जेड तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम ब्लॉक की नोटबुक में वर्क कर रहे हैं, तब तक हम फॉर्मेशन अपर और बॉटम लाइन से टच कराकर ही करेंगे. चलिए स्टार्ट करिए. वन हैड, वन मैन, टर्न. जे बना दिया. वन हैड, वन मैन एंड टर्न. जे जैसे जग. वन हैड, वन मैन एंड टर्न जैसे जग. वन हैड, वन मैन एंड टर्न जैसे जग. अगेन one had, one man and turn this is jug. One had, one man and turn this is jug. One had, one man and turn this is jug. One had, one man and turn this is jug. Again one had, one man and turn this is jug. One had, one man and turn this is jug. One had, one man and turn this is jug. One had, one man and turn this is jug. So kids, like this you have to complete your work. Now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So let's start one Hindi rhyme. Kids, open your rhyme book. Page number 30. इत्तवार. आज हम कौन सी पोएम पढ़ेंगे kids? आज हम पढ़ेंगे इत्तवार वाली पोएम. So kids, stand up in your place wherever you are, and I'm going to recite this poem, and you have to repeat after me with actions. So start kids. आज इत्तवार है. Kids, repeat after me. आज इत्तवार है, चूहे की बारात है. Repeat after me. आज इत्तवार है, चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे. Kids, repeat one more time. आज इत्तवार है, चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Practice it well and learn it more time. Thank you. Kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn A se Aha Swar with the help of your book Akshar Vatika. Kids, open page number 2. We will start स्वर आ से आहा. चलिए बच्चों, तो हम आज आ से आहा स्वर पढ़ेंगे अपनी बुक की हेल्प से. तो हम स्टार्ट करते हैं.
आपको अक्षर के साथ चित्र को भी पहचानना है। तो हमने आपसे अक्षर छुपाकर पूछा कि बच्चों ये कौन सा चित्र है, इसका पहला अक्षर क्या होगा, तो आपको उसका भी आंसर करना होगा। तो हम इन दोनों ही अक्षर और चित्र दोनों को ही अच्छे से पढ़ के याद रखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटे आ से अनार, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? छोटा अ। छोटे आ से अनार। बड़ा आ, बड़े आ से आम। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। छोटे आ से अनार, पकड़ो डाल, तोड़ो अनार, खाकर इसको बांटो प्यार। आ से अनार। बड़े आ से आम, आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है। बड़े आ से आम। अब पढ़ेंगे आगे दूसरा पेज टर्न करके। छोटी ई, छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? छोटी ई। छोटी ई से इमली। ई से इमली खट्टी कितनी, मुन्ना को भाती इसकी चटनी। बड़ी ई, बड़ी से ईख, बच्चों कौन सा अक्षर है? बड़ी ई। बड़ी से ईख, गन्ने को सब कहते ईख, बच्चों सीखो अच्छी सीख। छोटा ऊ, छोटे ऊ से उल्लू। छोटे ऊ से उल्लू, दिन भर सोया रहता उल्लू, रात को जागा करता उल्लू। बच्चों छोटे ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन, रंग बिरंगी प्यारी ऊन, मम्मी मेरा स्वेटर बुन। अब ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, ये कौन है बच्चों? री से ऋषि बाबा। री से ऋषि बाबा, सदा ध्यान में रहते ऋषि, बांटे ज्ञान और देते खुशी। री से ऋषि बाबा। अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 10। ए से एड़ी, बच्चों ये क्या है? कौन सा अक्षर है ये? ए से एड़ी, पैर के नीचे होती एड़ी, उचक उचक कर इमली तोड़ी। अब ये क्या कौन सा अक्षर है बच्चों? ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक, दादाजी जब ऐनक लगाएं तभी उनसे पढ़ा जाए। अब है ओ से ओखली। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली। ओखली में माँ दाने डाले, कूट कर ही फिर उन्हें निकाले। ओखली में माँ दाने डाले, कूट कर ही फिर उन्हें निकाले। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से औरत, सारे जग की जननी औरत, ममता की है मूरत औरत। ओ से ओखली। अब ये कौन सा अक्षर है बच्चों? इस पे देखो मम्मा की बिंदी लगी हुई है। अंग से अंगूर है ये। अंग से अंगूर, हरे भरे रसीले अंगूर, पकड़ो ले दौड़े लंगूर। अंग से अंगूर। अब आहा अक्षर खाली। आहा अक्षर खाली, बच्चों बजाओ ताली। आ से हा हा हंसता बच्चा, आहा से हा हा हंसता बच्चा, भोला भाला मन का सच्चा। भोला भाला मन का सच्चा। आ से आहा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? आ से लेकर आहा तक पढ़ा है। तो चलिए आज हम इसे रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पीछे का पेज टर्न किया, पेज नंबर 40, और उसमें हम आ से लेकर आहा तक पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। छोटी ई, छोटी ई से इमली, बड़ी से ईख। छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और आहा अक्षर खाली। बच्चों बजाओ ताली। Now kids, learn it well and recognize all objects well. Thank you. Hey kids, welcome to next class, and that is Hindi written. Kids, take out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 12th September 2020 and day is Saturday. Kids, today we are going to learn to draw the formation of A. आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? ए से ऐनक।
ऐसे एनर का फॉर्मेशन करेंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट। राउंड टेल, वन हैंड अप, वन हेड and one lollipop. Repeat it again. Round, tail, one hand up, one head and one lollipop. बच्चों आप कल ACAD का फॉर्मेशन आपने इससे पहले ड्रॉ भी किया, सीखा आपने उसको, फिर उसके बाद रिवाइज भी किया। आज हम क्या करेंगे, ऐसे एनर बनाएंगे। तो बच्चों ACAD आप सीख ही चुके हैं। ACAD का फॉर्मेशन क्या करते थे हम लोग? राउंड, टेल, वन हैंड अप, वन हेड, और अब बच्चों उसको लॉलीपॉप कहाँ देंगे हम? उसके हैंड में। जो उसने हैंड अपना अप किया है उसके हैंड में हम लॉलीपॉप दे देंगे, और कहीं भी हम लॉलीपॉप ड्रॉ नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, कहाँ हम लॉलीपॉप ड्रॉ कर रहे हैं? ये जो इसने हैंड अप किया है इसके इसी हैंड में ऐसे करके हमने एक लॉलीपॉप ड्रॉ कर दी, मीन्स उसको एक लॉलीपॉप दे दी हमने। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम ऐसे एनर का फॉर्मेशन करते हैं। और आप जानते हैं ये क्या है? ऐसे एनर। एनर कौन लगाता है? गांधी जी एनर लगाते थे, हमारे बाबा भी लगाते हैं, दादी भी लगाती हैं, सब लोग लगाते हैं ना। ये क्या है? ऐसे एनर। आप इसको कलर करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। राउंड, टेल, वन हैंड अप, वन हेड एंड वन लॉलीपॉप। आपको हम बार बार बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि लॉलीपॉप किस पर ड्रॉ करनी है? उसके हैंड पर ड्रॉ करनी है। आप ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। कई बच्चे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये बनाया हैंड, हेड बनाई, उसके बाद बीच में ड्रॉ कर दिया या यहाँ ड्रॉ कर दिया। बच्चों ये रॉन्ग होगा। आपको सिर्फ एक जगह लॉलीपॉप ड्रॉ करनी है और वो है उसके हैंड के पास। चलिए फिर से ड्रॉ करिए। राउंड, टेल, वन हैंड अप, वन हेड and one lollipop. Make ऐसे एनर। Round, tail, one hand up, one head and one lollipop. Make ऐसे एनर। Round, tail, one hand up, one head and one lollipop. ऐसे एनर। Again, round, tail, one hand up, one head and one लॉलीपॉप। ऐसे एनर। बच्चों ये स्टेटमेंट जो हम आपको लिख कर देते हैं, अगर आप इसके थ्रू आप फॉर्मेशन करते हैं तो आप इजीली फॉर्मेशन कर लेंगे। मान लीजिए आपको कोई लेटर नहीं आ रहा, तो हमने आपको हिंट किया इस लेटर से, सॉरी इस स्टेटमेंट से, तो आप अच्छे से कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपने ये स्टेटमेंट से किया है तो आपका फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसलिए इस फॉर्मेशन को रिपीट करते रहा करिए वर्क करते टाइम। राउंड, टेल, वन हैंड अप, वन हेड एंड वन लॉलीपॉप में ऐसे एनर। राउंड, टेल, वन हैंड अप, वन हेड एंड वन लॉलीपॉप में ऐसे एनर। अगेन, राउंड, टेल, वन हैंड अप, वन हेड एंड वन लॉलीपॉप ऐसे एनर। रिपीट इट अगेन। राउंड, टेल, वन हैंड अप एंड वन हेड, one lollipop, make ऐसे एनर। Round, tail, one hand up, one head, one lollipop. Repeat it again. One more time. Round, tail, one hand up, one head and one lollipop. और बच्चों फिर से एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको इसके हैंड पर ही लॉलीपॉप ड्रॉ करनी है, और कहीं आप ड्रॉ करेंगे तो फॉर्मेशन आपका रॉन्ग होगा। तो इस तरह से हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। नाउ इट्स योर टर्न, प्रैक्टिस इट वेल। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class, and that is maths written. Kids, take out the maths notebook and open the page where I have done the setting of 12th September 2020 and day is Saturday. Kids, yesterday we have written 1 to 10 काउंटिंग। हमने क्या किया था? 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करी थी। तो चलिए हम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग से ओरल एक बार लर्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 to फिर 1 1 11 वाला फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों टीओ के लिए हमने कल 1 0 10 के लिए हमने क्या बताया था कि फॉन्डर टीओ कैसे लिखेंगे? 1 यहाँ लिखेंगे और 0 1s के नीचे लिखेंगे। तो हमने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग कर ली थी। अब आज हम 1
1 1 11 का फॉर्मेशन करेंगे। So let's start kids. 1 1 11 बच्चों इसमें आपका कोई फॉर्मेशन का ही स्टेटमेंट नहीं है। अब हम आपको इसको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे 1 0 10 पढ़ा, अब 1 1 11 पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी फॉर्मेशन है वो 1 to 9 का ही फॉर्मेशन होगा। तो अब हमें कोई फॉर्मेशन नहीं पढ़कर इसे डायरेक्ट लर्न करना है। चलिए स्टार्ट करिए। 1 1 11 और बच्चों ध्यान से करिएगा, वंस के नीचे आपको एक 1 लिखना है और टेंस के नीचे दूसरा वाला 1 लिखना है। लेट्स स्टार्ट। 1 1 11 रिपीट इट अगेन। 1 1 11 1 1 11 रिपीट इट अगेन। 1 1 11 मीन्स जैसे कि 1 लिखा फिर 0 लिखा तो हम इसे पढ़ते हैं कि 1 0 10। अभी हमने 1 लिखकर दोबारा 1 लिखा तो इसे क्या पढ़ते हैं 1 1 11। मतलब 1 और 1 क्या हो गए 11 हो गए। 1 1 11 रिपीट इट अगेन। 1 1 11 1 1 11 1 1 11 and 1 1 11. Like this you have to complete this one. Now kids, I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, let's start our maths oral class. Yesterday we have learned counting 1 to 20. So today we will learn counting 1 to 30. Kids, let's start. Stand up in your place. Okay, fold your hand. Very good. So let's start kids. 1. Repeat after me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30. Kids, repeat it many times so that you can learn it well. You have to learn on counting 1 to 30. Thank you. Hey kids, welcome to your class, and that is GK Oral. Kids, as you all know that GK is an oral subject. And kids, as we have already learned to recognize all these shapes. So today we will revise all these shapes again. Let's start kids. Which shape is this? What is this kids? This is triangle. 1, 2, 3. It has 3 arms, so it is triangle. Next, this is oval. Oval, triangle, and then it has 4 arms. 1, 2, 3 and 4. 4 arms, so it is square. And 4 equal arms, so it is square. Now round and round, circle. Round and round, circle. Let's revise one more time. Triangle, square, triangle, square, oval, circle, square, circle, triangle, oval. So kids, recognize it well and learn it well. Thank you.